Others will join in between, huh? Sorry. So going into accglobal.com, study support resources, study support resources, ACCA qualification, audit and assurance, past exam papers, log in with our ID and password, once we are logging in, we are taken to the new website. This is attached website for practicing papers and all that. Under this audit and assurance, under this official resources, past exams, then practice exams, and then specimen exam. I said that I will be doing a specimen exam, and I will be doing from here past exam, this one, whatever the time permits. Not today everything, but फिर भी मैंने ये बोला है, तो मैंने बोला है कि आप लोग इन सब को प्रैक्टिस करिए, हर एक क्वेश्चन जितना है, because these papers are not 100 marks. They are maybe only 20, 40 marks question or 20, 30, 70 marks question और only multiple choice, कुछ भी हो सकता है. आप टाइम बाउंड होकर उसको सॉल्व करिए, एंड देन आप मॉडल आंसर से कंपेयर करिए, कैसा है नहीं है, कहाँ इंप्रूव करना है, रिवाइज करिए. ये सब आप कंप्लीट करिए मोटा मोटी कमिंग 5-6 डेज में. उसके बाद आप यहाँ पर प्रैक्टिस एग्जाम के अंदर आ जाइए. प्रैक्टिस एग्जाम अगर तीनों सॉल्व करेंगे अच्छा ही है, बिकॉज दिस इज स्पेसिफिकली फॉर जून. तो अगर आप तीनों सॉल्व करेंगे इट इज मच बेटर. बट जब आप प्रैक्टिस एग्जाम करेंगे यू नीड टू थिंक यू आर गिविंग एग्जाम फॉर 3 hours. यू नीड टू सॉल्व इट. Assuming you are in the exam, you can't refer anything, आप पूरा 3 घंटे में खत्म करिए. उसके बाद उसका मॉडल आंसर से अपने आप को इवैल्यूएट करिए अच्छे से, प्यार से, जितना मार्किंग गाइडलाइंस है उस सबको फॉलो करिए, एंड देन 1-2 दिन रिवीजन करिए, फिर एक दूसरा कर लीजिए. और इसके अलावा हम लोग क्लास में एक मॉक टेस्ट लेंगे ही, तो पहले थोड़ा रिवीजन चालू करते हैं यहां से. दिस इज ऑलरेडी असाइंड स्पेसिमेन पेपर, AA specimen paper. So in the left hand side, we will be able to see AA specimen paper. AA specimen paper. It is that somebody who is the password, because that student is still not yet completed auditing paper. Now this is the question paper starts. लेकिन ये सीधा यहां से क्या आ गया? 1 second. Navigator, start from first question. Oh, this is first question only. ठीक है. When we are doing multiple choice questions, generally we get carried away. कि भाई मल्टीपल चॉइस है, किसी ने किसी को मिलाना है, सेलेक्ट करना है. एग्जाम में होंगे तो वो करना ही है. इफ आई एम नॉट नोइंग देन ऑल्सो वाई आई विल लीव. बट अगर जब पेपर्स कर रहे हैं और अभी आपको एक बार मान लीजिए जब पहला चालू कर रहे हैं, टेक टाइम, जल्दीबाजी मत करिए. अंडरस्टैंड एज वी डिड द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, डेवलप योर कॉन्सेप्ट. मल्टीपल चॉइस करने के बाद आपको लगेगा अगर चीज नहीं आती है तो नोट्स को रेफर करिए. मतलब शुरू में मैं 5-7 दिन बोल रहा हूं, आप अपना रिवीजन इसी के साथ करिए, बट नॉट टॉपिक वाइज, बिकॉज इफ यू स्टिल गो टॉपिक वाइज यू कांट गिव द एग्जाम, यू कांट पास द एग्जाम. यू हैव टू स्टडी यहां से वहां से, यहां से वहां से, कितना दिमाग में आ रहा है, क्या क्या चल रहा है. कल तो एग्जाम नहीं है, अभी बहुत टाइम है. Still 20 days are there. So this is your proper revision time, preparation time. कि क्वेश्चन है तो मैं सारा चीज जानता हूं, I know and I will be able to solve the questions like this. थोड़ा सा ऊपर होकर सोचना है. One is study and one is preparation. Preparation means you are prepared to give the exam, to pass the exam. That means even though there is a question, but your knowledge is holistic. आपका नॉलेज पूरा एकदम संपूर्ण है, पूरा है. So you will be able to, not only this question, other questions also you will be able to solve. For that, whenever maybe you are doing correct or right, wrong, no problem. मान लीजिए I am solving in the class, maybe मैं गलती, मैं कोई डर रहा नहीं हूं. If I am doing any mistake, there is no problem.
I will see the model answer. I will evaluate my understanding. Maybe if I am getting confused in the model answer, I will go in the notes. मैं अपने आप को तैयार करूंगा. So that my preparation will be holistic and I will be able to easily pass the exam, get the confidence. Not only in this subject, every subject. कोई ऑडिटिंग की बात केवल नहीं कर रहे, हर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ऐसे ही करना होगा. तब आपको कोई फेल नहीं कर सकता. And at the same time, if you are good student, you will be scoring good marks. Maybe anybody of you can score 80 plus, because 80 plus is world rank in auditing. It is not 90 plus. So if you score 80 to 90, if you belong to that category, you should be thinking along those lines. If you belong to an average category, you may be targeting that मेरे को पास होना है. बट अगर आप अच्छे कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप सोचिए मेरे को 80 प्लस लाना है. जब इमेजिन करेंगे तभी तो 80 प्लस आएगा ना. अगर इमेजिनेशन में नहीं है तो आएगा कहां से? इफ आई एम नॉट ड्रीमिंग अबाउट समथिंग, हाउ दैट विल मेटेरियलाइज? मेरे बहुत सारा ड्रीम आता है. आई एम नॉट माने सेइंग दैट. बहुत कुछ मन में सोचता हूं, ऐसा होएगा वो होएगा. इफ आई एम नॉट ड्रीमिंग, आई विल नेवर बी एबल टू अचीव दैट. So that you need to dream that I can score good marks. I have the caliber, I have given hard work, and now it is the time I need to do the question paper properly so that my preparation will be best. Okay, चलिए चालू करते हैं अब. So the first part A is 3 scenarios. On the basis of each scenario, there will be 5, 5, 5, which is 15 questions. Each question will be of 2 marks each, 30 marks. One more thing. Many times a student says that, sir, पहले कौन सा करना है? पहले पार्ट ए करना है कि पार्ट बी करना है? इन अदर्स माने FR, PM, FR माने other subjects, there are 3 parts. Part A, which is pure multiple choice questions, 15 questions, 2 marks each. Then part B, like this, the auditing, 1 scenario, 5 question, another scenario, that is also multiple choice. That is 30 marks, 15 question. So in other papers other than auditing, it is 60 marks multiple choice. And then essay type questions are only 40 marks. 2 questions of 20 marks each. But in auditing, essay type questions are more and multiple choice objective type are less. पहले कौन सा करना है? ऐसा कोई रूल नहीं है. ऐसा कोई रूल नहीं है कि पहले ये करना है वो करना है. If I am in the exam hall, I will be doing first of all which I know very well. बस मेरे को इतना ही सोचना है. अब मेरे को कोई थोड़ी ना बताएगा somebody will be coming and telling me this you should be doing. That to my study will decide which one is easy for me. ये आपको सबसे बेस्ट कब समझ में आएगा? जब आप अपने आप प्रैक्टिस टेस्ट 3 घंटे का देंगे. जब आप घर पे बैठकर 3 घंटे का एग्जाम देंगे, आप ये सोचिए एग्जाम ही है, उसको फील करिए. तो एग्जाम में जैसे आपको करना है वैसे ही करना है. अब आप उस पेपर में पहले वही सॉल्व करिए जो सिंपल है. वो फर्स्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है. आपको ये सिनेरियो पढ़ना है. पहले सिनेरियो पढ़ के इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हो रहे हैं फटाफट उनको करिए. जो नहीं हो रहे बाद में देखेंगे. नॉर्मली मेरा तो एडवाइस है, जब आप सिनेरियो पढ़े तो आप सारे क्वेश्चन ही कर दीजिए. अदरवाइज यू विल नॉट गेट टाइम टू गेट बैक. और अगर आपको लगता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप थोड़ा गड़बड़ होता है, थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट होना पड़ता है, तो आप एक बार ऑब्जेक्टिव टाइप को स्किप कर दीजिए. अब पार्ट बी में सीधा आ जाइए. पार्ट बी में भी ये नहीं कि पूरा 70 मार्क्स पहले ही सॉल्व करेंगे. आपको जहां पर लगता है अच्छा यू विल बी एबल टू राइट वेरी वेल, आप पहले उसको लिखिए. ये आपको मॉक पेपर्स करके अपने आप को तैयार करना होगा. दिस नोबडी कैन टीच यू. बट इफ आई एम इन द एग्जाम हॉल, इन द फर्स्ट आवर आई विल बी डूइंग दैट थिंग विच आई नो वेरी वेल and in which I can score easily 20-30 marks. मतलब 1 घंटा में मेरा काम है कि मेरा 30 नंबर करीब स्कोर हो जाए. मोटा मोटी if in 1 hour you scored 30, you can't fail the exam. Next hour मैंने जब पेपर को गो थ्रू किया, जो थोड़ा गड़बड़ लगा उसको बाद में करना है. सेकेंड आवर में उसको करेंगे. जो नहीं आ रहा है, जो गड़बड़ उसको बाद में करेंगे. पहले सेकेंड आवर में और जो पोर्शन से थोड़ा टाइम लगेगा उसको कंप्लीट करेंगे. यानी कि अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपका 2 घंटे में 50 मार्क्स हो चुका होना चाहिए. 2 आवर्स में यू हैव ऑलरेडी स्कोर्ड 50 मार्क्स. अब आपके पास 1 घंटे और है. अब जितना जोश है, छोड़ के तो कुछ भी नहीं आना है. आई नीड टू सॉल्व एवरीथिंग, आई नीड टू राइट आंसर फॉर एवरीथिंग. 3rd आवर में वो लास्ट लेग, फाइनल लेग प्रोसीड करेंगे. अगर लास्ट का 4-5 मिनट बाकी है
और कोई मल्टीपल चॉइस बाकी है, अब आप ज्यादा ध्यान मत लग, बिकॉज व्हेन द टाइम इज रनिंग ऑन द टॉप यू कांट अप्लाई योर ब्रेन, जस्ट क्लिक, बस सीधा सीधी बस टिक लगा दीजिए, छोड़ना नहीं है. इफ दैट प्रोसेस यू फॉलो 2-3 टाइम्स, गिविंग योर मॉक एग्जाम इन होम बिफोर द एग्जाम, देन आपको पहले से ही अपने आप मालूम रहेगा हाउ यू विल बी परफॉर्मिंग इन द एग्जाम हॉल. जीत उसी की होती है जिसकी तैयारी सही है, जिसका प्रिपरेशन सही है, नॉट ओनली स्टडी, हर तरह से पेपर कैसे हैंडल करना है, पहले कौन सा करना है, बाद में कौन सा करना, कैसे मैं प्रोसीड करूंगा, करूंगी, आपका पूरा रेडी होना चाहिए. केवल पढ़ाई नहीं, पढ़ाई तो बहुत लोग करते हैं. देयर आर मेनी हु आर स्टडिंग द सिलेबस एंड देन दे आर फेलिंग और मे बी नॉट गेटिंग गुड मार्क्स, बट यू नीड टू बी 100% प्रिपेयर्ड कि मैं एकदम तैयार हूं एग्जाम देने के लिए, तब तो एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा ना. वो काम है अभी 20 दिनों में करने का. इन द कमिंग 20 days दैट्स द जॉब वी नीड टू डू. जहां जहां प्रॉब्लम आएगी रिवीजन करेंगे, नोट्स पढ़ेंगे, मान लीजिए वीडियो देखेंगे, कोई पर्टिकुलर एरिया है पूछेंगे, उसको अपडेट प्रिपेयर करेंगे प्रॉपरली. एक स्टेप है जिसको आने वाले 15-20 days में फॉलो करना है फॉर एवरी सब्जेक्ट, नॉट ओनली ऑडिटिंग, for any subject of skill level the same procedure need to be followed, and those who follow this, believe me, they can't fail the exam. It's impossible, whatever paper will come they can't fail, they will be easily able to pass the exam.